Good morning, students. Today we are going to start second chapter of economics, that is people as resource, अर्थात मानव एक संसाधन के रूप में. People, we treat the people as a precious resource. In the first period, we dealt with different factors of production like land, labor, capital, and also about human capital. In this chapter, we will know about all the factors of production. There are two terms, people and resources, where people stands for population, that is Indian population as a whole. अर्थात जब यहाँ पीपल की बात हम कर रहे हैं, लोग की बात कर रहे हैं, तो उसका तात्पर्य हमारी आबादी से है, अर्थात हमारे भारतीय आबादी से है, भारतीय जनसंख्या से है समग्र रूप में. एंड रिसोर्स, इट रेफर्स टू विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इनटू बेनिफिट. जबकि रिसोर्स का तात्पर्य है, रिसोर्स का अर्थ है जिसे लाभ में बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. अर्थात पॉपुलेशन को एक एसेट बनाना है, लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. और उसमें एसेट बनाने के लिए हमें मानव में some things we will have to invest, such as education, better health care, training, a skill enhancement, etc. As we know that Indian population is too much, and because of that we are facing lots of problems like unemployment, poverty, illiteracy, even the many kind of exploitation are also there. हमारी भारतीय समाज में आबादी की अधिकता के कारण हमें तमाम तरह की समस्याओं, चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है. जिस तरह की चुनौतियां वर्तमान समय में हम फेस कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता और शोषण जैसी समस्याएं आज हम देख रहे हैं. From this chapter we will learn how we can change Indian population into benefit. हमें इस चैप्टर के माध्यम से यह समझ विकसित करना है कि कैसे हम भारतीय आबादी को एक लाभप्रद स्थिति में बदलें, चेंज करें, पहुंचाएं. Sometimes we overlook the importance of this huge Indian population. Now, how can we convert this population in benefit? हम लोग कभी कभी पाते हैं, या हम लोग इसे पॉजिटिवली ले सकते हैं, सकारात्मक रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतनी संख्या में मानव संपदा है, मानव संसाधन है, और उसे सकारात्मक रूप में लेते हुए एक लाभप्रद स्थिति में बदलना है.
और here benefit मीन्स एसेट। यहाँ लाभ का तात्पर्य किससे है? एक एसेट से है। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति के अंदर शिक्षा या अच्छा स्वास्थ्य उसका नहीं हो, उसके पास कोई स्किल नहीं हो, कोई कौशल नहीं हो, कोई हुनर नहीं हो, तो उसको हम एसेट नहीं मान सकते, उसको हम बेनिफिशियरी नहीं मान सकते। और so right now we consider our Indian population as liability. Liability means burden, बोझ, भार के रूप में। तो यदि किसी पॉपुलेशन के पास, किसी व्यक्ति इंडिविजुअल के पास यदि एजुकेशन का अभाव है, स्किल का अभाव है, तो वो लाइबिलिटी हो जाता है। Also we have to think that how we can change this population into asset और boon। हम कैसे इस आबादी को लाभप्रद स्थिति में बदलें, एक अच्छे और कार्यशील वर्किंग कम्युनिटी के रूप में चेंज करें, वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में चेंज करें। What things we should invest that can change into benefit। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनका निवेश करके, इन्वेस्ट करके हम इस आबादी को लाभ में बदल सकते हैं, एसेट में बदल सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, यू such as you are a student right now, for you, are you an asset or liability for your parents? You are liability for your parents, because your answer will be we are liability for our parents because we are not contributing to the economic growth of our family. However, our parents are investing in us. Means your parents are investing on you. They are investing in your health, your education, your training, so that you could be an asset in near future for your family, for individual, as a person in acquiring who is acquiring education, training, blessed with good medical facilities. That particular person in near future going to be an asset for his family, after that for his society, and after that for his country also. For an example, investment word are used here. One word investment here. Investment refers to is an act of investing your time, your effort, and your money. Suppose you are getting education here, you are putting effort, money, and time also into something just to have profit, just to have advantage, just to have benefit from the particular things. Being a student, you are putting your time, effort just to score good marks. Means आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं और मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा एजुकेशन पाने के लिए, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट।
ये आपका निवेश है, आपका प्रयास, आपका समय, आपका मनी, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन यू सो दैट दे कैन हैव a better person for the country, not only for the country but also for society as well as for family. आप एक बेहतर नागरिक के रूप में उभरेंगे, समाज के लिए, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। Later on for economic growth, and also you will be contribute in economic growth for your country. आप भी आर्थिक विकास में, आर्थिक अभिवृद्धि में अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, योगदान कर सकेंगे। इफ यू आर एजुकेटेड, मेडिकली फिट, यू आर एन एसेट। यदि आप शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, स्किल्ड हैं, देन यू विल बी एन एसेट। सो बिकम एन एसेट, education, medical and training are required. If anyone asks you, then your answer will be to become an asset, education, medical care and training are required. Here also we focus on value of education. We discussed about that already. Just we discuss on economic activities. Next point is economic activities. Economic activities can be categorized into three types: primary, secondary and tertiary activity. मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप का तात्पर्य है कि हमारे वैसे कार्य, हम जो कार्य करते हैं और उससे यदि हमें धनोपार्जन हो, धन उपार्जन के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, लाभ के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थात आर्थिक गतिविधियां। हियर वी हैव कैटेगराइज्ड इन थ्री सेक्शंस: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्रक में। Economic activities which are related to agriculture, poultry, farming, fishing, horticulture, animal husbandry, mining, quarrying, etc. are called primary activities. Natural resources are just extracted with little or no modification in प्राइमरी एक्टिविटी। प्राथमिक क्रियाकलाप में सामान्यतः वे कार्य सम्मिलित हैं जिसमें प्राकृतिक या वो चीजें, वो वस्तुएं, वो संसाधन जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हो, अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो, अपनी नेचुरल स्टेज में हो, और उसके उपयोग से हम धनोपार्जन करते हैं, अपनी गतिविधियां संपादित करते हैं, अपने क्रियाकलाप को पूर्ण करते हैं, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो इसमें जैसे पोल्ट्री है, फार्मिंग है, मुर्गा पालन, कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, माइनिंग, खनन, ये सब जो गतिविधियां हैं, ये सब आपके प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई उसका
रूपांतरण नहीं होता, कोई उसमें बदलाव नहीं होता, बिल्कुल उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसका उपयोग सुनिश्चित करके व्यापार किया जाता है, उपयोग किया जाता है, धन उपार्जन किया जाता है। यही आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड secondary activity. Natural resources are properly modified in secondary activity. Here, what we do, we do manufacture the things what we got in primary activities, such as paddy. As an example, paddy is converted, is transformed into rice in secondary activities by, by the usage of machine in or in factories we change it into rice. So मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण, अर्थात इसमें हम मशीनों के उपयोग से, कल कारखानों के उपयोग से क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने जो वस्तुएं उत्पादित की थी, जो प्रोड्यूस किया था, उसको हम बदलाव करते हैं, विनिर्माण करते हैं और उसको उपयोग करने लायक बनाते हैं। जैसे धान का उदाहरण अभी आपने सुना कि उसको डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज, सो वी चेंज इट इनटू राइस with the help of machine or the factory. So we can use it, but directly paddy we cannot use. So crusher, another example is crusher. Crusher change the stone into uh, a small part of stone. So we use it into our build to house and other works also. तो जैसे चट्टानों को तोड़ा जाता है क्रेशर में, छोटे छोटे टुकड़ों में छर्री बनाया जाता है और उसका उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में। तो अभी हमने द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, द्वितीय क्रियाकलाप में के बारे में पढ़ा कि वहाँ प्राथमिक में उत्पादन हो रहा था, प्राकृतिक तरीके से वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में उसका उत्पादन हो रहा था, वो उसका नेचुरल स्टेज है। सेकेंडरी में हमने जाना कि उसको विनिर्माण किया जा रहा है उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। और टर्शियरी में तो क्या होता है अब जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज, सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, finance and different types of services under tertiary activities. You can add it also post office, communication services also in it. तो टर्शियरी में ना ही प्रोडक्शन होता है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका काम है उसको प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, प्राइमरी एक्टिविटी को और सेकेंडरी एक्टिविटी को हेल्प करना। किसमें हेल्प करना? प्राइमरी के प्रोडक्शन वर्क में और सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग वर्क में सपोर्ट करना। अब सपोज आप एग्रीकल्चर लोन के लिए बैंक से सपोर्ट लेते हैं, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बैंक से सपोर्ट लेते हैं, या फिर प्राइमरी में प्रोड्यूस्ड
थिंग्स को सेकेंडरी के जो फैक्ट्री वगैरह हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप ट्रांसपोर्टिंग का सहारा लेते हैं, वाहन का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें ना उत्पादन होता है और ना विनिर्माण होता है, बल्कि ये जो उपरोक्त दोनों जो गतिविधियां हैं उसके उत्पादन और विनिर्माण कार्य में क्रमशः यह सहायता पहुंचाता है। ये तृतीयक गतिविधि है। इसमें बैंक, संचार, डाक, ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन, बैंक जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन गोल economic activities are also divided into two types: market activities and non-market activities। क्या है मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी, इसके बारे में भी अब हम लोग आगे जानते हैं। मार्केट एक्टिविटीज when some product or service is produced to be sold in market, it is called market activity। इसमें वैसी गतिविधियां शामिल हैं, वैसे क्रियाकलाप शामिल हैं जब हम कोई वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए उत्पादित करते हैं, बाजार में बेचते हैं, तो वो हमारा बाजार से संबंधित क्रियाकलाप है, बाजार से संबंधित गतिविधियां कही जाती हैं। सपोज हमने सब्जियां उगाई और बाजार में बेचा, घरेलू उपयोग के लिए रखकर शेष अधिशेष जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको हमने बाजार में सेल किया, तो वो हमारा मार्केट एक्टिविटीज हो गया। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी when some product or services produced for sale consumption, it is called non-market activity। If a farmer produces just enough to meet his family needs, then his activity is a non-market activity। Similarly, the work of a housewife is a non-market activity because she is working for the benefit of her family members। यहाँ नॉन मार्केट एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हम जो वस्तुएं उगाते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं, अपने जो हमारा सेल्फ कंजम्पशन है, हमारा जो पर्सनल उपभोग है, इसमें कोई अधिशेष नहीं बच रहा, कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा कि हम बाजार में उसको बेच सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा होता कि हमारा साल भर का 2 क्विंटल गेहूं का यूज है और हम 3 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 क्विंटल सरप्लस प्रोडक्शन हो गया और उस 1 क्विंटल को हम बाजार में बेच देते हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गया। लेकिन यहाँ नॉन मार्केट एक्टिविटी में हमारा उपभोग, हमारी खपत, हमारा कंजम्पशन जो सेल्फ का है वो 2 क्विंटल है और 2 ही क्विंटल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो ये उसको तो हम बेच नहीं पा रहे, तो ये हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया। और उदाहरण स्वरूप कि एक गृहिणी हाउसवाइफ है और वो घरेलू कार्य में संलग्न है, इन्वॉल्व है, और किसी तरह का वेतन उसे नहीं मिल रहा, किसी तरह का अवकाश उसे नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो किसके लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए, पूरे पारिवारिक उद्देश्य, पारिवारिक इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रही है। तो ये इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं।
तो अभी हमने एक्टिविटीज के दो रूपों को देखा, दो कैटेगरी को देखा, एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी और एक मार्केट और नॉन मार्केट वाला सेक्शन था। इन दोनों के बारे में देखा। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। निश्चित रूप से हर किसी का यह दृष्टिकोण होता है कि हमारा जो समाज हो, हमारे देश के जो नागरिक हों, वो क्वालिटी युक्त हों, गुणवत्ता युक्त हों, उसमें हुनरमंद हों, कौशल युक्त हों, स्वस्थ हों, सभ्य हों, शिक्षित हों। ऐसी कल्पना, ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि हमारी अपने समाज के प्रति होती है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए some things are required, like literacy rate, health and skill determine the quality of a population. Especially present governments under the Prime Minister Narendra Modi's government took initiative for the skilled India. Means here whatever population are in our country, that should be a skillful, so that he took initiative for our country. So what things required? Literacy rate, health and a skill determined the quality of population. Means एक आबादी की गुणवत्ता को कौन से कारक, कौन सी शर्तें हैं जो गुणवत्ता युक्त बनाते हैं? तो उसके लिए साक्षरता दर, स्वास्थ्य और कौशल, हुनर जिसे आप कहते हैं, तो ये गुण होने आवश्यक हैं। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। यदि आपके समाज में निरक्षर लोग हों, अस्वस्थ लोग हों, बीमार लोग हों, तो आपकी आबादी क्या हो जाएगी? वो बर्डन हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, बोझ हो जाएगी देश के इकोनॉमी पर, किसी भी परिवार के कंधे पर वो एक बोझ के रूप में काउंट होगी, उसकी गिनती होगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। तो जो साक्षर, शिक्षित और स्वस्थ आबादी है, वो किसी अर्थव्यवस्था के लिए एसेट होते हैं, पूंजी होती है। और क्योंकि उस कंट्री के, उस नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में वो रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब स्वस्थ और शिक्षित आबादी आपकी हो, तभी आपका जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, योगदान कर पाएगा, उसके लिए काम कर पाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल भी हम देना चाहेंगे कि जापान में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे राज्य में खनिज संसाधन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन आज जापान की गिनती प्रथम 5 बड़े जीडीपी वाले कंट्रीज में उसकी गिनती होती है। वहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, वो वहाँ के इकोनॉमी के लिए
वहाँ की फैमिली के लिए, वहाँ की कंट्री के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के इकोनॉमी के लिए वो लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि वो एसेट है। वो हुनरमंद है, वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, शिक्षा के प्रति वे गंभीर हैं और स्किल के प्रति भी ट्रेंड है, ट्रेनिंग लेते हैं, उससे हिचकते नहीं, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और जापान को आगे बढ़ाने में, जापान को डेवलप्ड कंट्री बनाने में उनका बड़ी भूमिका है। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से उन्होंने कार्य किया और उसकी सराहना होनी चाहिए और प्रेरणा के तौर पर हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, वहाँ की अच्छाई को। वो एक इंस्पायरेशन है हमारे लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन enhances the literacy level and a skill level of a person. It also helps in enriching the culture of society. Presence of educated person in the society indirectly benefits the illiterate person as well. देखिए, समाज में जब शिक्षित वर्ग के लोग हों, कौशल युक्त लोग हों, वे समाज की संस्कृति को, जो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति है, उसको तो समृद्ध करते हैं, उसको वो सशक्त बनाते हैं, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचाया जाए उसका भी उन्हें ज्ञान होता है और वो प्रयत्न भी करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। और वो इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, वो जो निरक्षर आबादी है, अशिक्षित आबादी है, जो यह कुशल आबादी है, उसके लिए भी कार्य करते हैं। उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट करते हैं। तो यदि उनका रोल देखा जाए, जो एजुकेटेड पीपल हैं, उनका रोल सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बेहतर रहता है, बढ़ चढ़ कर होता है। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन among the people. Government strive to provide universal access to education. It also makes various plans to increase the retention of students. Special emphasis is given on girls' education. Here, government has taken various steps to spread education. वर्तमान सरकारों ने पूरी दुनिया में अपनी अपनी आबादी को बेहतर समाज के रूप में रचना करने, उसे गढ़ने, उसे विकसित बनाने, उसे समृद्ध बनाने, उसे कुशल बनाने, उसे शिक्षित बनाने का प्रयास किया है। स्पेशली शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं। सपोज यहाँ भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एसएसए का जो प्लान है उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। तो बहुत ज़्यादा बल सरकार ने इस दिशा में दिया है कि आबादी को शिक्षित आबादी में बदलना है, उस लाइबिलिटी को एसेट में चेंज करना है। और जो विद्यालय बीच में छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, जिनकी पहुंच विद्यालयों तक नहीं है, उसके लिए एमडीएम, फ्री बुक, फ्री यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी सरकार दे रही हैं। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी सरकार का विशेष जोर है, ताकि हमारे देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है वो भी शिक्षित हों,
उन्हें भी एसेट में बदला जाए, और जो हाउसवाइफ के रूप में गुजार देती हैं, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में उनकी गिनती होती है, तो यदि उनमें भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किलफुल उन्हें भी बनाया जाए तो निश्चित रूप से वो भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में वो कंट्रीब्यूट करने में सफल होंगे। तो इस वजह से महिला शिक्षा पर भी, नारी शिक्षा पर भी सरकार का विशेष जोर होता है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन इन फर्स्ट प्लान वाज 151 crore 151 crore. It has increased to the 43,825 crore in the 10th प्लान। फर्स्ट प्लान में शिक्षा के लिए कितना इन्वेस्ट किया गया? 151 करोड़, जबकि जो 10th 5 ईयर प्लान था उसमें 43,825 करोड़ की राशि शिक्षा के लिए, यहाँ की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ये निवेश यहाँ की मानव को संपदा में कन्वर्ट करने के लिए ये राशि निवेश की गई है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज 0.64% ऑफ द जीडीपी इन 1951 and has increased to 3.98% of the GDP in 2002 and 2003। जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है शिक्षा के लिए, यदि यहाँ का जो कुल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी जो पूरे देश की है, उसका 1950-51 के समय जब बजट प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया संसद में, तो उसमें साक्षरता के लिए 0.64% राशि व्यय की गई, खर्च की गई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर। और ये 2002-03 के आंकड़े कहते हैं, 2002-03 के बजट में 3.98% की राशि व्यय, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.98% जो राशि है वह व्यय किया गया। ड्यू टू कांस्टेंट एफर्ट द लिटरेसी रेट हैज ग्रोन from 18% in 1951 to the more than 70% in 2011. Literacy rate is higher among males compared to among females. Kerala is a state with more than 90% literacy, while some states have a very low literacy level. यहाँ हम लोग पाते हैं कि शुरुआती दौर में 18% अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात 1950-51 में जब जनगणना हुई, साक्षरता दर को ज्ञात किया गया तो पता चला कि देश की साक्षरता दर मात्र 18% है, अर्थात प्रत्येक 100 में मात्र 18 लोग जो हैं वो पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। वहीं 2011 के आंकड़े कहते हैं कि 70% पॉपुलेशन हमारा जो है, हमारे भारत का जो है, वह पढ़ने लिखने में सक्षम है। और अभी भी लिटरेसी रेट इज हायर एमोंग मेल्स कंपेयर टू एमोंग फीमेल्स। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के मध्य जो साक्षरता दर है वह उच्च दर है, वह बेहतर है, पुरुषों का बेहतर है। केरला इज अ स्टेट with more than 90% literacy while some states have a very low literacy level। तो केरल में more than 90% लोग लिटरेट हैं, और कुछ राज्यों में स्थिति में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, जहाँ कम साक्षरता दर है, और महिलाओं के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड
सर्व शिक्षा अभियान टू स्प्रेड एजुकेशन टू रिमोटेस्ट part of the country. Under his program, all children under 6 to 14 years of age are given elementary education. हमारे देश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, जिसका जिक्र अभी हमने किया था कुछ देर पहले। तो ये सर्व शिक्षा अभियान की बात है। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल सो दैट चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल कैन अटेंड द स्कूल। जो दुर्गम इलाके हैं, जहाँ शिक्षा का महत्व लोगों को नहीं पता है, जहाँ विद्यालय नहीं थे, वैसे जगहों पर नए विद्यालयों की स्थापना हुई। वैसे स्थानों में लोगों के बीच शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार किया गया, बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया, उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, मिड डे मील की व्यवस्था की गई और इससे काफ़ी सफलता मिली कि गरीब बच्चे भी, निर्धन बच्चे भी विद्यालय में उपस्थित रहने लगे। उन्हें विद्यालय तक लाने में इससे काफ़ी सफलता मिली है। द 10th प्लान हैज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 6% to 9%। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है हमारे देश की, उसमें जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में जो नामांकन है, पहले जहाँ 6% तक सीमित था, लिमिटेड था, वो अब 9% तक पहुँच गया है। अर्थात हायर एजुकेशन आर आल्सो स्प्रेडिंग इन आवर सोसाइटी। द स्ट्रेटजी is to increase access, quality and adoption of state-specific curriculum to motivate enrollment in higher education। ये सरकार का उद्देश्य है कि हमारी 21वीं शताब्दी का जो भारत हो वह बेहतर भारत हो, एक श्रेष्ठ भारत हो, एक शिक्षित भारत हो और साक्षरता से आगे बढ़कर एक शिक्षित भारत हो, एक कौशल युक्त भारत हो, एक हुनरमंद भारत हो, जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में लोग सोच सकें। और इसी वजह से हायर एजुकेशन पर भी बल दिया गया है और यहाँ 6% से 9% तक आंकड़ा पहुँच गया है। उसमें जो नामांकन का प्रतिशत है, नामांकन की जो स्थिति है, तो शिक्षा, उच्च शिक्षा सबके पहुँच में हो, गुणवत्तापूर्ण हो और हर किसी के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सरकार ने प्रारंभ की है। वोकेशनल कोर्सेज आर आल्सो ऑफर्ड एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड टू अटेंड द गोल। देखिए, परंपरागत शिक्षा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा उसमें चेंजिंग लाते हुए वोकेशनल कोर्सेज पर बल दिया जा रहा है। व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई सबको मिले ताकि वो रोजगार के लिए जहाँ तहाँ ना भटके। सिर्फ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको जो 9-10 में एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी है, तो उसके माध्यम से जो एक बेहतर, कुशल और तकनीकी रूप से दक्ष, तकनीकी युक्त आबादी का निर्माण जो करना है, यह जो उद्देश्य है उसको पाने में सफल होंगे। द 10th प्लान आल्सो फोकस
on distant education, convergence of formal and non-formal and IT education. ईयर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका एक और उद्देश्य है, उसका एक और जोर है कि डिस्टेंट एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा, दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो आसपास कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने घर पर ही रह करके इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से, जैसा आप अभी ले रहे हैं, तो उस तरीके का उपयोग करते हुए वो भी अपनी शिक्षा, अपनी जो उच्च शिक्षा है उसको हासिल करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी का भी लोगों को ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो, तो इससे जो आधुनिक भारत है उसका निर्माण का जो स्वप्न है वह पूरा हो सकता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप सबों को अच्छे से यह चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।